3 सेमेस्टर्स होते थे, हम लोग को 2 सेमेस्टर की आदत थी। लगातार एग्ज़ाम्स हुए जा रहे हैं। मेरे पापा तो मेरे पास आ गए कि भाई व्हाट काइंड ऑफ अ वियर्ड डिसीजन इज़ दिस? What was the compensation you got out of the campus? Because I'm trying to compare कि पहले 8 लाख मिला था. What was the factor increment you got? I got a campus placement in a sales role from my childhood. I always wanted to remain close to technology. You don't get the product management role and then you start your own company. यूपी की हवा अगर चख लो तो उसके बाद यूपीएससी ही आती है यूपी की हवा। अप्रैल तक एक अच्छा क्लाइंट मिल गया था, जिसमें मैंने लगभग 10 लोग का टीम सेटअप कर दिया था उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए। मेरे को लग रहा था कि कुछ वो डीडीएलजे वाला कुछ तो होगा, फिर मेरे को लड़की मिली, अब शादी हो गई उसी से, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अभी एबीसी के साथ कोझिकोड आता है और लखनऊ और इंदौर नीचे हैं। I had beautiful girls and fancy cars around me because my startup succeeded. कभी भी कुछ भी हो सकता है। Welcome everyone. It's a great pleasure to have Bhupendra on the show with us, and I think he's the first person who became an entrepreneur right after graduating from IIM Lucknow, who we are interviewing on the show. And I think that means a lot. I think it takes a lot of courage because we know that 90% of people who go to IIMs go there to get a better job. वो placements देखते हैं, वो देखते हैं कि क्या salary मिलती है IIM से graduate करने के बाद, and that's why they go to the IIMs. So to have someone on the show who had the courage to actually get a good job offer from campus, but to leave the job and start his own company. And my job during this interview will be to keep him honest and to actually have him tell us how difficult it was. Because most of the shows, people go and say, "Acha, I was in the shower, I got this idea, and the next thing I know, I had beautiful girls and fancy cars around me because my startup succeeded." But believe me, it's not like that. It's never like that. And Bhupendra Kesang will get to share what the reality was like and also how he found the courage to not do the cushy job that 90% of people enter into IIMS and then 95% of the people exit. 99% of the people exit out of the IIMS with cushy jobs. Even the other 10% of people who enter idealistically, by the time the IIM is over, all they want is a 20, 30 lakh ka job and on an average or sometimes even more, and then they're happy with that. So Bhupendra, let's start with that question. Tell me what was unique in you that you were one of the 1% of IIM graduates every year who decide to not take a lucrative job from the campus and do something of their own. What can I trace it back to your childhood? Because usually we are who we are because of the home that we grew up in, the parents we had. So, what was unique about you that made you do this? I don't know if that is something which is unique. I think I reacted as per the circumstances happened, and when I got into IM, right, I did my graduation in computer science, and then right after my graduation, I joined IMs. I wanted to be a product manager, and I like playing with technology, building products. So I thought that I could be that. But when I actually ended up doing a PGDM course, I realized that I was not eligible for, like, let's say, at least 80% of the tech product manager roles because they required 36 months or more than that experience, right? So I got like a campus placement in a sales role, and then I joined that company. I launched them in Bihar, in the territories of Bihar, and I did that for 2 months. And then what happened was I didn't really, from my childhood, like you said, I always wanted to remain close to technology and uh, had like throughout my life worked on technology products. Like I would say from my class sixth onwards, I used to program stuff and then participate in smaller computer quizzes, etc., which used to happen at a school level. I also represented a couple of like my school across other schools in the city level events. Uh, so basically, there was something which wanted me to stay close to technology. So I fortunately ended up
in the same city as my BTech batchmate, which is Mohit, and and we both kind of started working during our BTech days, which with like local businesses out of Allahabad. I did my graduation from NIT Allahabad, and there we used to work with smaller businesses out of Allahabad who used to sponsor at Tech Fest at that point of time. And that's how we kind of started working on technology product. This is like 2010, 11 when we were there, and it was like good pocket money as well, because that time we didn't used to make a lot of money. Like pocket money was also like less than 2,000 or 3,000 rupees, right? But the projects which we used to do were like 40,000 or like a 50,000 range of projects, and that time it was like good enough money for us. So that kind of I think the circumstances aligned, because I was staying with my friend who used to work during my BTech days, and thought, why not just let's start something which So I love. what you're telling me is that you're someone who didn't get a product management role in a Yeah, tech company out of IIM Lucknow, and yeah. you said that that was so important that you'll start your own company so you can be a product manager. I mean, I love And technology yeah, that and I'll way, share so this story. Like I didn't want. Elon Musk likes to say that he stood outside the offices of Netscape to get a job at Netscape. Right. And he sent in the resume, nobody selected him. Then he stood outside the offices, Yeah, nobody hired him, so he ended up yeah, starting his own company. yeah. So very similar story that you ended up starting your own because you I couldn't. I Companies were couldn't not. find any Yeah, jobs which I they would went. love to do. I Yeah, did they get went. into startups as well, but they were also looking for somebody in sales role. But at the same time, I couldn't really. I don't know, but I now ended up being the only sales guy which we have in in our team. But Okay, but that's my organization. Maybe I have to do it. So yeah. okay. So very interesting. Uh, so so tell me more. Like, how was growing up like? How was your family like? Did you grow up in a typical middle class family? Were you guys rich or less than middle class? How was it? I would say it was like a typical middle class family. My father was in railways. He was in railway officer. Majorly, I think 10 years of his life he spent in Lucknow. So I also was growing up at that time. I came to Lucknow in 2098, 1998. Okay, not 2000. And then I have lived there since then. Like my father was plus for 10 years, and I did my schooling, etc. And then went to like do my graduation also in UP, Allahabad only. And then after that I came back to Lucknow. I got into IIM Lucknow, and then I think but the childhood was I think fun in the sense that Lucknow is a pretty nice place. We were in a railway campus. uh, it initially took me time to adjust, because I think in the class third I was in a Hindi medium school, and then I kind of went to an English medium school. That was something which was started changing a bit, and then but yeah, it eventually became good. I came from Varanasi before that. Yeah. भूपेंद्र, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम क्लास 3 में, हाँ. इज इट वेरी डिफिकल्ट? नॉट रियली, मतलब मैं इतना ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बट इट वाज लाइक फॉर मी इट वाज लाइक अ ट्रांजिशन ऑल्सो, राइट? मतलब एक साल तो लगा उसमें एटलीस्ट शुरुआत में, तो मैं मतलब द पासिंग स्कोर वाज ऑल्सो डिफरेंट इन द होल स्कूल्स. आई थिंक अर्लियर इट वाज I don't know, 40 for some people. But in English, I failed in class fourth and fifth. Maybe like around the edges, I would say. Yeah. So then it started improving after sixth onwards. Yeah. So it was a little difficult, challenging, because the whole communication was in English. I was used to Hindi communication. Uh, yeah. As a kid, it was difficult. Yeah. First, they say, and plus, it was not just the school. It was like I was in a government school earlier, and then went to a private school. The teachings were the way of teachings, and the way a student kind of I don't know, comes prepared for the class is different in both the context. Yeah, so the culture was also different. Okay, okay, very nice. So you do your schooling, then you do your
NIIT, say engineering, BTech, then you go to IIM Lucknow, and you don't get the product management role, and then you start your own company. So I am most interested in the after IIM aspects, like company कैसे start करी, and how did you run the company, what are the products, what is the revenue, how many employees, how difficult it was, and all those aspects. But before we do that, we also want to ask you something before IIM, just to keep the timeline clear. So tell me, so we'll focus a lot on the second aspect, the second part. In 10 minutes, we'll get there. Before we get there, I want to ask you, how was your preparation for IIM? Like, how did you prepare for it? Uh, I I basically from my third year of my BTech, I joined a career launcher, and then started. There was like a bunch of people who were traveling and from our campus to a stop which they had, I think, in civil lines, Allahabad. And then what they did eventually is next year onwards, they had a proper program inside the campus only. Started like studying with these folks. Like they were like not more than 30 people from our batch who were preparing. And then a How big cohort. was your batch? This was total people, I would say, were 600 across branches, because there were like eight Sure. branches, right? But my So, branch yeah, was, so out of 600 people, only 30 people were preparing for IIMs. That looks a bit low to me. I mean, they joined that particular career Sure, launcher career program, launcher, हाँ. right? Yeah. कुछ So the दूसरे लोग program दूसरे was joined. programs पे कर तो जाते रहे हैं, हाँ. होंगे बहुत लोग, right? हाँ, हाँ. But 50% तो उस देते हैं एग्जाम. डू यू थिंक 600 के 600 कैट लिख रहे थे? नहीं नहीं नहीं, नहीं? उस समय दोनों चीजें थी, मतलब कैट भी था आपका और गेट भी देते थे कुछ लोग, because PSUs used to take from that, and sometimes not many PSUs used to come to campus, so गेट के स्कोर पे PSUs में भी हो जाता था कुछ लोगों का. And that time वही कल्चर था कि either PSU or I think software engineering roles started hitting really good packages at that point of time. That was so केवल कंप्यूटर साइंस का ही हो पाता था, बट बाकी ब्रांचेस का उन उन रोल्स में तो हो नहीं पाता था, राइट? सो एटलीस्ट आई वॉज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, तो हम लोग के लिए तो रिलेटिवली चिल था. आई गॉट इनटू डेलॉइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट it was relatively easy for computer science grads, but other branches had to take a lot of backseat. Why was it easy for computer science? I mean, Deloitte ने तुमसे कहा कोडिंग तो करानी नहीं है. हाँ. So what's So, but उनने थोड़े बहुत सवाल हमसे कोडिंग से रिलेटेड ही पूछे थे, मेजरली अराउंड मैं. नहीं, वो तो इसलिए पूछे थे क्योंकि they were checking कि पढ़ाई करी थी या नहीं हाँ करी थी. हाँ, मतलब उसमें But why do you think you said कि computer science के लिए easy है? Is it because there is a perception कि computer science वो self selection हो चुकी है, ये topper थे हमेशा, इनको subject of choice मिली है, not or is there a different reason? no, I think no, there is I would say in other branches the roles were not there, the position itself were not there, right? If you talk about civil, if you talk about electrical, not many options were there. There were not jobs at an entry level were not there. But yeah, companies like TCS etc. did allow other and all branches from BTech to participate, right? And if you talk about an IT lab, we all are like good from a cream, like some kind of filtration has happened, right? So I don't think so that would be one reason, because I did had a batchmate from civil and electronics who kind of cracked US placements. Like the electronics guy got into Facebook in the US, I guess. And there was a guy in civil. He was not allowed in multiple computer science roles, but his passion was to pursue like software engineering as a role, and he did got through eventually. There was some company who took him. So yeah, there were things. So engineering, is it like there are three types of people in engineering? One is who are preparing for MBA. One is who are preparing for some masters in engineering or technical education. And the third is people who are actually who have no clue. वो इन दोनों में से भी कुछ ले सकते हैं और क्योंकि नहीं इनको मिलेगा तो जॉब भी कर सकते हैं. Or they are even sure job type of people. Is that right? Or is there a fourth option? As an entrepreneurship at that point was not really
an option which many people were pursuing. There was UPSC. एंटरप्रेन्योरशिप थर्ड वाले में आ जाती है ना कि जॉब करनी है, कुछ और करना है, मतलब हाँ, एक है इंजीनियरिंग मास्टर्स करना है, एक है एमबीए टाइप करना है, और एक है कि नौकरी या like कुछ और UPSC भी एक करना बहुत है। बड़ा और ऑप्शन है. मतलब I would say out of my 140 people batch in computer science itself, almost 40 people who left their jobs and started preparing for UPSC. So अच्छा, that is also वो तो इलाहाबाद का नशा होगा, maybe that was there, right? Because है ना? वो जनरली एनआईटी और इंजीनियरिंग में नहीं होता है। right. So yeah, so वो एक बहुत बड़ा वो था. I was also surprised कि people who were in I don't know, Oracle and other good organizations are also like they were preparing for UPSC. They left their jobs. Yeah, so not many got through, but at तो least एक two बार three people. यूपी की हवा अगर चख लो तो उसके बाद यूपीएससी ही आती है यूपी की हवा में। Right. Acha, Bhupendra, so you got a job with Deloitte. What was your Yeah, package over there? it was around 8 plus some bonus, I Wow, guess. that's great. So back in 2011, you get a package of 8 plus, Yes, there were and you are 16 as well at that point of time. My like Amazon was playing around. I think 16s, including the ESOP part. I guess. oh, very nice. And you were 21 at that time, huh? So at the age of 21, you have a package of 8 lakh in your hand. I think so. Yeah, I don't remember my age at that point of time. Yeah, but Uh, it is. Yeah, and it then, must be so around. from career launches, did you get into AM Lucknow right away, or did you have to take the No, exam again? I did get it to it right away. Yeah, I got Okay. cleared for well, three topper ones. Like the Calcutta was Hmm. there, and then Lucknow was there, and then Kozhikode. So these three I did sit through. Hmm. Uh, Hmm. what do you call it? The initial GD and PI rounds. Bhupendra, what was the pecking order of IIMs or any other Indian MBAs when you were applying? Because these things It is. somewhat keep on changing, right? I don't think so. It has changed majorly. I would say, like ABC has been always there on the top. I haven't seen that fluctuating anyway. And then after that, Lucknow and then Indore and Kozhikode were like a little bit. These three were keep changing, but it's I think uh, it's almost the same is what I felt at that point of time. No, the reason I asked you, and maybe you're slightly biased, but someone told us कि अभी ABC के साथ कोझिकोड आता है और लखनऊ और इंदौर नीचे हैं। Okay. I have no clue about that, but I don't think so that's possible even. So नहीं? नहीं मुश्किल है बहुत Okay. मुश्किल है. Okay. It might be because the person who said this was Kozhikode and not. Maybe, yeah, but like what I feel is like ABC have a different filtration criteria even, right? Even if you talk about Lucknow, that time what happened was there was some marks which was given to the female genders, right? And what happened was I think Lucknow, Kozhikode, and Indore had a very different mix of male-female ratio in my batch, right? In our like previous to my batch, there were like 50 females which were there, and there were like I think 4 women hostels, and then what happened was in our batch there were 150 female students, right? So the number of hostels had to be like cut down as well for men because the changes happened, right? So I think during that year, I think Lucknow, Kozhikode, and Indore were very agile in doing that. ABC still did not had a lot of, I would say, gender diversity at that point of time. Achha. So how many women in your batch at Lucknow? Out of 450, I think 150 were women. You were 450 in one batch. Yes. So total 900 in 2 batches. Yes. Wow. In our next batch, there were Wow. 240 women, 250 women. So the number of men reduced significantly from like Got it. the batch previous to us. Yeah. So क्या मतलब मेरे को तो ये पूछने का हो रहा है, मतलब क्या तुम मतलब इंटरव्यू लखनऊ के इंटरव्यू में कुछ वेग साड़ी पहन कर गए थे या क्यों हुआ? How did your interviews go? Uh, I don't know. I will. It's more about the topic, which I'm not like a very at that point of time. I was not very like a person who is very good in expressing in a group kind of a situation, right? But during the Lucknow interview, at least the group discussion topic was a little better, so I was able to
speak up. And in my personal interviews, I'm pretty good. Like I do one-to-ones better than groups. So that is like what has been my personality since So then. what was your GT topic? I don't remember, but it was around art and technology being mixed together. Exact topic I don't remember, but it had something to do with art as well as technology. So I was able to kind of. Yeah. No, even I don't remember what my GT topic was. I just remember one thing कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था. And I let everyone speak and then end में मैंने ना ज्ञानी बाबा की तरह बोल दिया कि देखो अच्छा अब ऐसा है कि let us see the pros and cons of the situation. कुछ तो बकवास करी और हो गया. Right. Yeah, but I do remember the interview went better than the group discussions. Yeah, so I think. Do you have any interesting experiences from your Lucknow or other interviews? No, I did not give many interviews. I just gave Calcutta, Lucknow, and I don't think so. I gave Kozhikode even. I did had a letter, but I did not give it. Okay. So क्या पूछा Calcutta, Lucknow? Were they different? Were they the same? Similar? Uh, And where were they? Did you have to travel for any of these yes, yeah. I interviews? had to. I went to Delhi multiple times. Yeah, so Delhi was the location. So the closest center for you were in Allahabad then, right? Yes. No. Yeah. At that point of time, I was in Allahabad. I had to travel to Delhi two times for these interviews. Like the Lucknow one was in the Noida campus of Lucknow. Lucknow incidentally has a Noida campus as well. Yeah, it is. It's different that ways. I don't know if they have a core Lucknow campus and I have a Noida campus, and like now we are also seeing a lot of faculty members who are like really, I would say, older ones and the whom people used to like admire, moving towards the Noida campus. So in our batch, there was a problem that we it was very difficult for us to kind of get Noida campus and faculty members to the Lucknow campus, right? So that demarcation is there. It's I don't know. It's good for the good or not for the good, but they have So I'm these. Lucknow has a campus in Noida, Yes, they have two and how campuses. many and what size is in Noida and what size is in Lucknow? Like the batch? I think there are two programs which are run. One is the executive Okay, program. I think they did it for the executive program. that's in Now Noida. there, yeah, now there is a program in ESG as well, right? Okay, So that is also run in Noida. Yeah, okay, okay, okay. But the flagship PGP program is out is of in Lucknow. Yes, Lucknow. Got it. yes, Yeah. that is still there. Yes. So you're not going to be rebranded as I am Delhi. जैसे अभी वो NEETI has become I am Mumbai, right? So अभी Lucknow is not opening I am Delhi or I am NCR anytime soon. But this is an interesting thing because I've seen it outside the, at least in the US, like the universities have campus across. I don't know how they do that, but in India, it's not like that. But in the US, I've seen at least the universities having smaller campuses across the state, which they are at least that state is flooded by the major university of that particular state. Yeah. No, even I've heard. I think it is I am Ahmedabad who has opened a Dubai campus, or is it I'm Bangalore or someone has opened a Dubai campus now, and I think that's the way to go because I know LBS has a Dubai campus and a Singapore campus. Um, I know Wharton has a San Francisco campus because yeah, I saw that classes हो रही हैं होटल के अंदर. Nice. Okay. Yeah. Okay. Hmm. Yeah. So होटल कॉन्फ्रेंस रूम बुक करो और वीकेंड क्लासेस करो. दैट इज द वे. 2 days only. Yeah. 2 days only क्योंकि because you're targeting big cities, right? Right. Just like Lucknow is targeting Delhi, Gurgaon kind of, and Noida, the NCR belt, Right. execs for all these. दुबई में we've got execs, Singapore, ये सारे जो execs रहते हैं जो big cities में metros में global metros. Mm-hmm. That is how where everyone wants to go to. Right. Because you have the crowd there also, and most of the time corporates also fund these. I think the Noida campus, like a lot of corporate programs are also. They also have like a working professional MBA. Oh Yeah. yeah. So that is also there.
So Bhupendra, you got into IIM Lucknow. Tell us a bit about your 2 years there. उतना तो नहीं मजा आया होगा जितना हमें बैंगलोर में आया था. मुझे नहीं पता कि आपको बैंगलोर में क्या मजा आया था, बट एटलीस्ट इट वाज वेरी फन, राइट? आई मीन लाइक आई हैड बिकॉज इवन जैसे बीटेक करके जब आप बी स्कूल में आते हो तो रिलेटिवली काफ़ी डिफरेंट माहौल मिलता है, वुड से वन यू हैव ओल्डर पीपल एज वेल एंड देर इज़ अ डिफरेंट या बिकॉज हम मुझको ऐसा लगता है कि बीटेक में हम काफ़ी बच्चे होते हैं एंड जैसे ही वहाँ से बी स्कूल में जाते हैं तो काफ़ी बड़े लोगों के साथ भी मिलने लग जाते हैं एंड you also have kids who are there, but they also kind of mingle like that, and like start taking their careers more seriously, I guess. Because I remember people on the first day having their CVs and going door to door get the reviews. I was like, I didn't I don't know why you are doing it. So and this was just we had just So you went without WorkX, yes, I right? went without WorkX, yes. And what's the proportion of your class out of 450 people? कितने what percentage was with WorkX, without 50-50, I WorkX? think so. I think so, 50-50 at that point of time. And the 50% with WorkX, so I normally think कि वो जो up to 1 year, 1.5 year WorkX ना थोड़ा सा एक वो minor WorkX बोल सकते हो और फिर 2 year plus को major WorkX बोल सकते Yes, हो. yes. या So वैसे थे major WorkX वाले लोग. हाँ थे, मतलब बट नॉट मैनी, आई वुड से 40% से 30% के बीच में हो गए, टुवर्ड्स मोर 30, आई गेस, नॉट इवन 40. Okay, okay. सो थर्ट So बाकी तो मतलब 50% आपके freshers हैं तुम्हारी तरह. राइट. So that should not be a problem, right? They're all in the same boat as you. हाँ, बट मेरे मतलब डिपेंड्स ऑन whom you meet and who you become your friends also, right? So मेरे नॉर्मली लोग जो मेरे ग्रुप में थे वो वर्कएक्स वाले थे काफ़ी. Not everyone was a fresher, but yeah. So maybe I feel it like that. Yeah. But so what I was saying is like it was a different thing. It was very fast paced. It was like a 3 semesters होते थे, हम लोग को 2 semester की आदत थी, लगातार एग्जाम्स हुए जा रहे हैं. द इंडक्शन इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल्सो, राइट? सो इंडक्शन से ही शुरुआत हो जाता है कि हाँ कुछ अलग हो रहा है, राइट? तो दैट इंडक्शन प्रोग्राम इज फन, right? And I don't know what happens in Bangalore. Your induction must be also fun, I guess. I mean, honestly, all IIMs, especially the top 6, top 10 IIMs, I can't speak about the latest new ones because they're also still establishing, finding their feet. But बाकी सारे IIMs are all the same. ठीक है, मेरे हिसाब से 19-20 का फर्क होता है and I've not seen any other IIM, but I've heard of, because of our channel, we've heard from people across IIMs, across batches, and one thing I keep hearing in different words, and my line is, the more things change, the more they remain the same. तो जो 25 साल पहले मैंने देखा था वो आज भी वही हो रहा है. पीपल ग्रेजुएटिंग 2 years ago, और एंड ऑब्वियसली एग्जैक्टली वो नहीं हो रहा. इट्स द सेम थिंग कि लैंडलाइन पे हम बात करते थे, लोग आज मोबाइल पे बात कर रहे हैं, बट बात का टॉपिक तो सेम ही है ना. अब बात तो वही कर रहे हो ना, मम्मी ये हो गया मेरे साथ आज. फाइनली फोन तो आप वही कर रहे हो. आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हो, एंड आई थिंक दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग. ऑफ कोर्स जनरेशन चेंज, and like that, Lucknow, Bangalore, Ahmedabad, Calcutta, whatever else, Udaipur, uh, Visakhapatnam, ये सारे similar ही हैं. And on that, you mentioned कि लोग CV लेके घूम रहे थे. Does that have anything to do कि summer placements? नहीं, वो तो शुरुआत में, मैं बता रहा हूँ आपको, पहला वीक of the just हाँ, getting into the IM, right? I saw 1 or 2 people हाँ. actually going to their whatever. I don't know whom they assigned mentors was, because that time no mentor was also assigned for CVs, right? So they did travel with their CVs. So I saw like some people were really serious about placements, and because it's like it's crazy money also, right? I mean, like in terms of the fees which people are paying, and How much was your fees? it was around 13 lakhs, and then there is plus whatever the
expenses of the hostel, etc. It came out to be around 15-16 lakhs rupees because I also did a students exchange. That was expensive. Where did you go for your student exchange, Bhupendra? I went to Milan, Okay. Politecnico di Milano, Milan, and there's MIP. करके They have Hmm. a MBA school. So That I you think that spent around 16 lakhs over 2 years, yes, yes. including the exchange. So सस्ते में छुट गए भाई. नहीं, एक्सचेंज का हम तो लोग तो हिसाब ही नहीं है कोई. exchange के एक्सचेंज का साथ ही हिसाब निकले. नहीं है. I don't know exchange was 4 lakhs, 5 lakhs, whatever lakhs. Hmm. I don't remember Hmm. the exchange because I remember like the exchange was like one significant piece because that gave me different exposure and I kind of did backpacking across Hmm. for 3 months. It's the courses which at least were getting taught at that point of in my college were basically I think we had already completed those. This was almost like a revision of what we had done before. And so from a study wise, we did not really had a lot of restrictions. We did had attendance Okay, restrictions. I'll share a secret with everyone on the channel. Not many people, even from my batch, knows. I don't think even Meglani knows. I went Okay. to exchange to Copenhagen, Okay. and I just backpacked. I just traveled. I drank. I had fun. Three Yeah. months later, the time comes to give exams, and I didn't give the exams because I didn't even know पढ़ाई क्या हुई है class में. Yeah. And I So came back to campus. तो exchange खत्म हो गया तो college आ गए वापस uh-huh. और marksheet तो है नहीं. So उन्होंने marksheet मांगी. उस समय डीन हुआ करते थे प्रोफेसर जनत शाह. Okay. उन्होंने मार्कशीट मांगी कि अच्छा एक्सचेंज करके आए हो मार्कशीट का. तो मार्कशीट तो नहीं मिली. मार्कशीट नहीं मिली. सर मैंने पास नो पास लिया था तो उन्होंने कहा कि पास हो गए हो मार्कशीट नहीं. बोला नहीं ऐसा तो नहीं होगा. यू नीड टू गेट अ ग्रेड. So I couldn't graduate in that year. So though I'm Oh. a batch with Meglani, I did not get my certificate with Meglani. I had to stay back for 1 year and then get my certificate. So So you did one. ये देखो, अब हम इसको जूनियर बोल सकते हैं. अब हम इसको जूनियर बोल सकते हैं. But Bhupendra, I have to tell you this, कि having done 2 MBAs technically, one from Europe and one from India, attendance वाला पंगा उतना ज्यादा नहीं होता बाकी MBAs में, from my understanding, चाहे US में हो या यूरोप में हो, जितना IIMs में होता है. अच्छा. Okay. या आई थिंक IIMs में तो होता है कुछ ना कुछ अटेंडेंस का पंगा. आई एक्चुअली फॉरगॉट एवरीथिंग कितना होता था. बट या वी यूज्ड टू गो टू क्लासेस रेगुलरली. बट मतलब ओवरसीज मेरे को जो समझ में आया देर हैड दिस वियर्ड थिंग कि 80% से ऊपर अटेंडेंस यू विल बी you will evaluate, let's say, on a score of 100, and if you have like less than 80, then we'll reduce the maximum marks. So we said okay, do that. We don't really care about the attendance at this point of time. So but somehow we were able to cross that 80% marks in some way or the other. But but yeah, like Vic said, we were backpacking. Yeah, that was like क्लास में बैठ के भी वही डिस्कस हो रहा है कि आइटनरी क्या बनानी है, अभी कहाँ जाना है. फॉर्चुनेटली मैं इटली में था तो सबसे ज़्यादा डेस्टिनेशंस आई वुड से इटली में ही है ना. तो जो भी लोग आते थे मतलब मेरे यहाँ से और होके ट्रेन जाते थे सिस्टम भी इतना अच्छा है और यूरोप में इतना कि हाँ, कुछ ज़्यादा ही प्यारा है. मतलब वी बहुत एंड बहुत प्यारा है. द ऐप इट एक्चुअली टेल्स यू व्हाट लाइक एक मिनट पे हमने प्लेटफॉर्म बदला है. मतलब हम स्विट्जरलैंड पहुंचे, मेरे को कहीं भी जाना यस होता तो मुझे यस. स्विट्जरलैंड जाना ही पड़ता था. तो 1 घंटे में स्विट्जरलैंड पहुंचता था. फिर वहां से 1 मिनट में जस्ट प्लेटफॉर्म के सामने ट्रेन आ रही है, आप पहुंचो, 1 मिनट में आएगी और चल देगी उस टाइम पे. मतलब देर इज नो डिले. आई डोंट नो इफ आई सॉ ए डिले. कुछ कुछ जगहों पे मुझे पंगे हुए थे. जैसे मेरे को एक याद है कि मैं एक बार एक ट्रेन में छूट गया था. तो आई वॉज अच्छा. गोइंग टू शिमोनेक्स, आई थिंक फ्रांस में. तो वहाँ जा रहा था मैं और बीच में एक स्टेशन में आया, बोला कि दिस फ्रेंच में कुछ बोल दिया उनने. अब हमने कहा ठीक है, लोग जा रहे हैं, इनको उतरना होगा. उतर गए लोग, इंटेलिजेंटली उतर के चल दिए. मी एंड माई फ्रेंड वॉज देयर एंड इट वॉज सम स्टेशन विद द नेम ऑफ ए. खाली मेरा डब्बा छूट गया
ट्रेन कट हो गई और चले गए। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे हम शिमोनिक्स का होटल बुक था, यहाँ पे तो कोई होटल भी नहीं, कुछ भी नहीं है। देन वी हैड लाइक अ बजट कि हमारा 20 यूरो का होता था। So you had a friend with you, Bhupendra. सो एंड वी बोथ वर अरे मेरे को लग रहा था कि कुछ वो डीडीएलजे वाला कुछ तो होगा, फिर मेरे को लड़की मिली, अब शादी हो गई उसी से, नहीं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. नथिंग लाइक दैट हैपेंड। बट वही है कि हम डोर टू डोर जाके ठकठका रहे हैं and देख रहे हैं कि भाई कितना, क्योंकि हमारा बजट 20 यूरो का था। मतलब मेरा डेली बजट 30 से ज़्यादा मैं खर्च नहीं करता था, और उसमें 6 से 8 यूरो में हमको हॉस्टल बेड मिल जाता था, और बाकी 10 यूरो का एक टाइम का मील कर लेते थे, और एक टाइम आई वुड से कुछ ना कुछ कर लेते थे हम जुगाड़। तो एंड दैट फॉर्चुनेट लाइक good thing was the travel was free because of the Urail. Even if some trains want reservation, we used to even act ki okay, we don't have cards to pay you, like that's then they used to remove us in the next stop, then we used to get into the next car. तो वो सब भी करते थे, मतलब काफी फन था वो। बढ़िया सिस्टम है ना कि ठीक है, नहीं है पैसे तो ठीक है, अगले स्टेशन तक तो पहुंच ही जाओगे. हाँ मतलब एकदम। और मतलब टीजीवी वगैरह में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे वो 20 यूरो 30 यूरो जो भी उनके दिमाग में आता है, आई थिंक वो हमको पता भी नहीं है रूल्स क्या है, कि वो ले लेते हैं आपसे रिजर्वेशन का पैसा। तो यार आई थिंक हमें यहाँ पर विक्स नोट टू द एडिटर इज यहाँ पे एक बड़ा बड़ा छाप दो, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम. आवर चैनल डज नॉट बैक अप दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच मे नॉट बी लीगल इन डिफरेंट कंट्रीज. अपने आप को बचाना है, मतलब हम नहीं बोल रहे कि आपको करना है, बट अगर किसी को सीखना है भूपेंद्र. नहीं, उस टाइम पे कार्ड हम लोग तो डेबिट कार्ड दे देते थे इंडिया का, ये लीजिए चार्ज करके देख लीजिए चलेगा कि नहीं चलेगा। तो कुछ नहीं चलता था वो। तो क्या कर लोगे आप। एंड आई डोंट नो, मतलब नॉर्मली वो होता है कि आप डे पास ले लो 2 या 3 यूरो का, आई थिंक उसमें आप अक्रॉस उसमें जा सकते हो, बस पंच कराना होता था एक बार। बट वो भी हम लोग नहीं लेते थे, उसमें भी चेकिंग नहीं होती थी। कभी कभार कुछ लोग पकड़े गए हैं, इज व्हाट आई हैव हर्ड, उसमें 50 यूरोस फाइन होता है, बट दैट्स ओके, लाइक आराम से घूमो आप। Yeah, I cannot recommend this. I cannot recommend this. I just cannot recommend this. I just cannot मतलब आई एम recommend टॉकिंग this. अबाउट, आई डोंट नो, थिंग्स माइट हैव चेंज्ड। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ, तो तुम फ्रांस में एक छोटे से विलेज के स्टेशन में हो, हाँ अपने जहाँ पहुंच, और आप दरवाजा खटखटा रहे हो कि 8 यूरो में सोने को कहाँ मिलेगा आज रात को, नहीं, फिर क्या हुआ? फिर हमको कुछ 30-40 यूरो में मिला, 40 यूरो का अराउंड में मिला एक जगह पे, बट नॉर्मली सब 150-200, मतलब हम्म, 80 से नीचे कोई नहीं आ रहा था। बट एक जगह पे हमको मिला, वहाँ पे खाली बस 2 बेड थे, हम चले गए किसी तरह से। तो वी वर ओके। बट हाँ मतलब वो थोड़ा सा वो था कि मेरे को 1-2-3 घंटा लगा ढूंढने में, काफ़ी ट्रैवल करने में। प्लस इंटरनेट भी नहीं होता था हमारे पास। मतलब वहाँ पे वही है ना कि बर्गर किंग में जाओ, अरे इंटरनेट पैक्स वैसे उतने अच्छे नहीं थे, आई वुड से। इंटरनेशनल वाला तो हम यूज़ नहीं करते थे, हमारे पास जो इटली का सिम था वो बाकी जगहों पे नहीं चलता था, और महंगा था बहुत। तो हम बर्गर किंग जाते थे, वहाँ पे वाईफाई यूज़ करते थे थोड़ी देर के लिए। उस समय गूगल का ऑफलाइन मैप आ गया था, तो वो एक तरीका था कि आप ऑफलाइन मैप यूज़ करके आप जा सकते हो। फिर नहीं, फिर अगले मैकडोनल्ड्स या किसी में जाओगे, फिर वहाँ पे उसका फ्री वाईफाई यूज़ करोगे, फिर आप ऐसे हॉप करोगे। तो ऐसे करके तो हम ट्रैवल करते थे। And I think these memories that you form and the fun that you have, I'm telling you, as you get older, you never have them again. When I was in Copenhagen, I went to London once because कभी लंदन नहीं देखा था, और जब मैं कोपेनहेगन में था तो मेरा एक दोस्त सौरभ सिंह लंदन में था। तो मैं मिलने गया उससे, वो लंदन में एक्सचेंज कर रहा था एट लंदन बिजनेस स्कूल आई थिंक, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वन ऑफ दोस। तो वी वेंट आउट टू ईट एट अ इंडियन रेस्टोरेंट, शायद बांग्लादेशी कोई सर्वर था वहाँ पे, बहुत टेस्टी खाना था। तो दोनों सोचे थे यार लंदन में इंडियन खाना तो बहुत यमी है। देन आई रिमेंबर कमिंग बैक टू माय हॉस्टल, जहाँ की मैंने डॉर्म स्टाइल बेड्स थे, लाइक those 10-15 euro or pounds or whatever, I don't remember that, back in 1999. I remember staying in that dorm room kind of a place, and they had a kitchen in the basement where you could go and make food, and there'd be like banana and apple always there, and then that place had the mushy smell. It's as if something was wet and somebody had not cleaned it for some time. And but then still, the memories that I formed then are just so special that you just never get them again. आई मीन लाइक Yeah. बार्सिलोना में हमारी चोरी हुई। अच्छा तो अच्छा, बार्सिलोना में कई लोगों की चोरी होती बहुत है। चोरी है, I think you're the second वी or इवन third वेंट टू person. द पुलिस। तो मेरे साथ तो बड़ा फन अच्छा इंसिडेंट हुआ
कि Hmm. हम 5 लोग थे एंड उस समय हमने 5 लोगों ने चेकआउट किया, 2 वर अच्छा, वुमेन तो एंड so there'll be a 3 वर topic मेल। episode called बार्सिलोना में चोरी, हाँ? हाँ हाँ, या बार्सिलोना में मस्त चोरी हुई। तो उसमें बेसिकली क्या हाँ, हुआ कि हम लोगों ने एक वो मतलब जिंदगी मिलोगी ना दोबारा स्टाइल में वो रोड ट्रिप मारा। उस दिन सबने चेकआउट हाँ, किया, एक गाड़ी रेंट की, उसी में दिन रात हाँ, रहे, मतलब रात तक रहे। वी हाँ, यूज्ड टू गो टू सम मतलब रेस्टोरेंट, स्लीप देयर, एसी हम्म, तेज करके वहीं बैठे हुए। फिर सुबह प्रॉपर किया, फिर बार्सिलोना वापस पहुंच गए रोड ट्रिप करके। हाँ। एंड एंड देयर इज दिस कितने लोग थे गाड़ी में? 5 लोग थे, है ना? तो गाड़ी भी पूरी कर ली इस हाँ, रात। 5 लोग हाँ, गाड़ी में 20 सो रहे हो एक संग। मतलब मैंने सो रहे हैं इन द सेंस कि रात भर अरे हाँ, रोड पे ही थे, राइट? मतलब किसी को हाँ, नींद आ गई हाँ, तो सो गए, नहीं आए तो हम हाँ, लोग तो रेस्टोरेंट में हाँ, जा जाके हाँ, हर 1-2 घंटे में वी आर इंश्योरिंग कि स्टॉप आए, जाए, कुछ हाँ, खाए हाँ, पिए, घूमे, मतलब वो। हुँ, तो हुँ, वैसा कर रहे थे। फिर हमारे साथ एक फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड थी, तो एंड देयर वर 2 पीपल, राइट? तो वो चल रहे हैं अब मस्त, उसके किसी ने पैर पे व्हाइट कलर का पेंट डाल दिया। अब हुँ, अब एंड देन देर देर वो जाके चला गया, तो देन शी स्टार्टेड क्लीनिंग अच्छा, दैट विद द टिश्यू, है ना? तो वो हुँ, फिर तब तक दूसरा बंदा आता है, वो उसका मतलब टिश्यू से खुद साफ करने लग जाता है। शी इज लाइक नहीं नहीं मैं खुद कर लूंगी टाइप। देन उसका स्लिंग बैग था, हुँ, उसने उसके चक्कर में उतारा और उसने जमीन पे रखा। तीसरा बंदा आता है, वो पकड़ के भाग जाता है। एंड देन देयर इज अ मिस डायरेक्शन व्हिच इज हैपनिंग कि इधर गया, इधर गया, इधर गया। अब उसमें क्या है कि 2 लोग वो साथ में थे, एक और फ्रेंड भी था हम लोग के साथ। उसका यूरेल और उसका पासपोर्ट, इसका भी यूरेल, पासपोर्ट, उसका आईपैड, पता नहीं बहुत कुछ था उस बैग के अंदर, सब गायब हो गया। फिर उसके बाद अब फिर हम लोग, मैं उस समय वहाँ पे था नहीं, तो मेरे को फिर फ़ोन आया यार, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 दिन और बार्सिलोना में रुकूँगा, मेरा एक और फ्रेंड था उसके साथ। सो वी केम बैक एंड ही वाज लाइक वी आर गोइंग टू पुलिस स्टेशन टू कंप्लेन। अब वो बोल रहे कि यार बैग आपका कभी आएगा तो देंगे, एंड दे हैड दिस एप्स ट्रैकिंग वगैरह। हमने बोला ट्रैक कर लो भाई। तो दे आर लाइक नहीं हम तो ये सब नहीं करते, एंड इट्स लाइक एंड दे जस्ट गेव अ लेटर कि गो एंड रीच टू योर कंट्री वेयर यू केम फ्रॉम, एंड देन 24 आवर्स है आपके पास, नया वीजा बनाओ और जाओ जहाँ जाना है तुम्हें। आई मीन देन वी वेंट अहेड एंड सॉ लाइक ओपन द बिग डंपस्टर्स ना, जो बड़े बड़े होते हैं वहाँ पे डस्टबिन्स। तो उसके अंदर हमने देखा कि जैकेट्स, पर्स, ट्रॉली, सब कुछ। और सारे मतलब कितना चोरी होता है मुझे भी नहीं पता। मतलब ऐसा तो इंडिया में मैंने कभी नहीं देखा रिलेटिव। और उसी फ्रेंड के साथ एक दिन पहले भी एक दिन हुआ था इंसिडेंट। उस दिन तो हम हुँ, लोगों ने चोर को पकड़ लिया था। तो अच्छा, मतलब बार्सिलोना में मतलब आई थिंक कुछ ज्यादा ही चोरी है। एंड हुँ, आई यूज्ड टू हुँ, रिमेम्बर पेरिस इज आल्सो वेरी वेल नोन कि सिवाय इनर हाँ, सर्किल वाला छोड़ दो, बाकी सर्किल्स में जो दोस्त लोग रहते थे, दे वर लाइक कि 8 बजे के बाद अगर ट्रेन पहुंच रही तो हम जाएंगे ही नहीं। अच्छा, मतलब वो तो हुँ, पूरा मतलब अपने घर ही नहीं जाते थे कि भाई हम या हुँ, तो ऐसा बनाएंगे हुँ, प्लान कि 8 बजे से पहले पहुंचे, या हुँ, फिर हुँ। तो फिर उसको मिला उसका पासपोर्ट वगैरह, नहीं, कुछ नहीं पासपोर्ट, मिला, वीज़ा वगैरह? एंड कुछ नहीं देन मिला। ही हैड टू गेट अनदर वन डन एंड कम बैक? नो नथिंग लाइक कम बैक। तो यूरेल तो चला गया, उसका तो मिलता नहीं है। और हुँ, पासपोर्ट, वो एक वाइट कलर का पासपोर्ट कुछ इशू करते हैं वो लोग। तो अच्छा। इंडियन एम्बेसी टेम्पररी क्या? हाँ टेम्पररी पासपोर्ट कुछ बनता हुँ, है इंडियन हुँ, एम्बेसी, हुँ, उससे कुछ ट्रैवल तो कर हुँ, सकते हो आप। हुँ, बट हुँ, मतलब वो हमारे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रिप था, तो हुँ, रिलेटिवली तो वो दोनों चले ही गए थे वापस। तो बट ठीक है, अच्छा। मतलब इट वाज, हाँ, ये चलो, so you had चोरी इज अ वेरी lots of बैड fun. हाँ, हाँ। So you had lots of fun. And now tell me the next thing. Placement season कैसा था? तो प्लेसमेंट सीजन भी आई थिंक 2 होते हैं ना, तो वो तो एक वर्क एक्स वालों का पहले ही निपट जाता है मोस्टली। उसमें सब लोग प्लेस हो ही जाते हैं जितने वर्क एक्स वाले होते हैं। उसके बाद मतलब वो अपना वीक वाला प्लेसमेंट होता है। और इट वाज आई वुड से अ लिटिल स्ट्रेसफुल बिकॉज तो काफ़ी हेक्टिक ही होता है। आई गॉट प्लेस्ड ऑन डे सेकेंड आई गेस, या सो मतलब ठीक ही है वो, दिन रात उठे रहो, हर दिन सुबह सुबह उठ के पहुंचो 6 बजे, रात के 12-1 बजे तक बैठे रहो फुल ड्रेस्ड अप, एंड it's fun in a different way I guess. Sure, sure. Yeah. And what was the compensation you got out of the campus? Because I'm trying to compare कि पहले 8 लाख मिला था. What was हाँ, the factor increment you got? उस समय मुझे 12 मिला था। Okay. So from 8 you went to 12. या Okay. Okay. So now I want to come to your entrepreneurial journey.
So Right. let's start from the beginning. Right. So you're staying in this city and you meet your BTech friend, and with your BTech friend you decide कि एक startup करते हैं. Was it like a black and white decision, or was it like कि चलो करते हैं फिर धीरे धीरे फिर? So, सो मेरे को अपना जॉब थोड़ा सा बुरा लग ही रहा था. सो वट आई स्टेल्थ में मैं कुछ कुछ लोगों से बात कर ही रहा था, एंड देन देवर सम इंटरेस्ट विच आर कमिंग, बिकॉज मैं ना बीटेक के टाइम पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उठाता था, राइट. तो वो एक हैबिट थी, और मैं फॉर्चुनेटली नोएडा में जहाँ पे आया वो भी मेरा सेम पार्टनर था, उसी के घर पे रहता था, साथ में रहते थे हम लोग. तो दैट दैट थिंग स्टार्टेड आई थिंक जनरेटिंग देन ओनली. मतलब वो 2-3 महीने जब भी हम लोग जब से मैं नोएडा आया था, आई हैड सम रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम सम पीपल. सो आई थॉट कि यार मतलब ये चीज़ें परस्यू करना मेरे लिए एटलीस्ट मुझे मतलब कुछ बनाने को मिल रहा है, एंड वन दे आर ऑल्सो रेडी टू पे सम मनी, और मनी वॉज नॉट ग्रेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई वुड से बीटेक वॉज मच ड्यूरिंग माई बीटेक डेज Hmm, there I used to get much more hmm, project hmm, value. But hmm. तो क्या बनाने के लिए सिंपल CRUD so apps this is like like? simple. So मैं जैसे मेरा वो पहला प्रोजेक्ट था, वो एक ऑडियो कंपनी थी, उसको अपना B2B चेन के लिए मतलब CRM टाइप बनाना, CRM नहीं, आई वुड से Okay. इसी का मिनी ERP बिलिंग सिस्टम Hmm, बनाना था, okay. कि आप मैन्युफैक्चर से रिटेलर की बिलिंग करवा पाओ, Hmm, एंड hmm, इन्वेंटरी ट्रैक कर पाओ, एंड hmm, स्मॉल काइंड hmm, ऑफ अ कस्टम मिनी काइंड ऑफ अ स्मॉल ERP आई वुड से. तो hmm, वो बनाना था. फिर देन देन आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल. मुझे 1-2 साल तो उसी में लग गया कि रीच आउट hmm, कैसे किया जाता है समझने में, आई वुड से. hmm, बट hmm. फॉर्चुनेटली वी माय तो हुआ क्या कि मेरे पापा तो मेरे पास आ गए कि भाई क्यों, मतलब ये दिस इज व्हाट काइंड ऑफ a weird decision is this, right? Hmm, hmm. How can you We were traveling he's with gone इसका nuts or जवाब. something like that has हाँ हाँ happened, हाँ. right? So तो पापा आ Hmm, गए, तो पापा took me to 2-3 people of hmm. his For right, counseling. हाँ, for his जो भी उनके बैचमेट्स होंगे उस जमाने के. ही इज ऑल्सो एन इंजीनियर, इज डन इन SCRA अपने ज़माने के, तो मैकेनिकल गाय. सो तो वो अपने बैचमेट से मिलने लग गए कि यार ये लड़का क्या है सही है नहीं है, क्या है, क्या सोच रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा. बिकॉज फॉर हिम ऑल्सो लाइक फॉर इवन मी, आई वॉज ऑल्सो नॉट श्योर कि मैं कितना बड़ा करूँगा, क्या करूँगा, क्या प्रोजेक्ट्स आएंगे नहीं आएंगे, कितना कमाऊँगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. सो एंड बट इट सो आई आस्क्ड हिम कि मुझे 3-4 महीने का टाइम दे दो, एंड 3-4 महीने में आई थिंक आई वुड बी एबल टू काइंड ऑफ मेक सम मनी ऑफ माई ओन, एंड एटलीस्ट सपोर्ट एटलीस्ट हिम. कि जो 1 लाख रुपीज अ मंथ में सैलरी में कमा रहा था उतना कमाने लगूंगा. हाँ, सो समथिंग लाइक दैट आई वाज थिंकिंग, है ना. तो अब थिंकिंग तो ठीक था, तो उन्होंने कहा कि 3 साल 3 साल ले, तू 3 महीना छोड़, तो यू टेक योर टाइम, right? So you, so that way he was very supportive, but initially he was very scared for me, at least in the sense ki what am I doing. So then the good thing is he made me meet a couple of people, then I got some network of his at least, right? Although did not really translate into a project, but ठीक है, मतलब at least good to I still get inquiries, and 2-3 years later it translated into a project, some of his networks also. So वो भी है. So बट या दे सेड कि यार इसको पता तो है कुछ ना कुछ तो करना चाह रहा है, ही इज राइट इन हिज थॉट्स एटसेट्रा, बट लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स. तो मैंने कहा चलो ठीक है. उनके फ्रेंड्स ने भी थोड़ा सपोर्ट दिखा दिया, एंड देन आई वाज लाइक प्रीटी चिल, ओके लेट्स डू दिस. एंड देन छोटे छोटे धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स किए, रेफरल मिला, मतलब दिल्ली के कुछ प्रोजेक्ट्स किए, नोएडा के प्रोजेक्ट्स किए, वहाँ से मुंबई के कुछ प्रोजेक्ट्स मिले. रेफरल, आई थिंक रेफरल पे ही चलता है B2B बिजनेस, तो उसके बिना तो और कोई तरीका है ही नहीं. और आई डिड ट्राइड रीचिंग आउट टू मतलब लिंक्डइन के ज़रिए, मतलब अपने NIT इलाहाबाद के कंप्यूटर साइंस वाले लोग, हैं लखनऊ के, मतलब जितने सीनियर्स हैं उन सबको. सो दैट वेज इट वाज फन. दिस वाज लाइक मच मोर आई वुड से बेटर पार्ट इन द सेंस तो जब ये आई. कर रहे थे तो जॉब भी कर रहे थे कि यू लेफ्ट इट बने? नहीं, तो जॉब छोड़ के, जॉब नहीं नहीं, जॉब छोड़, मेरा 2 महीने का ग्रे एरिया था वो, वही मैंने जॉब किया, उसी में ग्रे एरिया है, क्या बोले उसमें आपको. तो एंड दैट टू दिस वाज वेरी हेक्टिक जॉब इन द सेंस कि आई वाज एक्चुअली आई डिड लाइक अ 20-day tour in my job for Bihar. I went to
I don't know, Patna, Samastipur, Sitamarhi, Araria, Purania types, those kind of locations, right? That you really, and every day I had to change my cities and appoint some stockists and उनको कुछ मतलब orders लो वगैरह वगैरह, that kind of a stuff. So I would say उस टाइम पे उतना नहीं मिला, but हाँ एक महीने का टाइम मिला था मुझे जॉब में थोड़ा बहुत. But then वही एक दो प्रोजेक्ट्स मुझे मिले, फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग रेफर्ड. तो एटलीस्ट शुरुआत में वही था, लोगों को लगता था कि चलो एटलीस्ट मतलब आई वुड से मेहनती एंड ईमानदार बच्चे हैं, आए हैं काम करने के लिए, लोग लेके दे देते थे प्रोजेक्ट्स. सो तो पहला 1 ईयर का रेवेन्यू कितना था? आई डोंट ओके, मैंने तो मतलब नवंबर में तो मैंने कंपनी रजिस्टर की थी. जून 2 इज व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब. एंड हाँ. उसके बाद मुझे क्या हुआ कि अप्रैल तक एक अच्छा क्लाइंट मिल गया था, जिसमें मैंने लगभग अच्छा. 10 लोग का टीम सेटअप कर दिया था उस Oh, that's पर्टिकुलर big, क्लाइंट के yeah. लिए. हाँ. और 4-5 हम लोग, मतलब 3 लोग हम्म, 4 लोग हम लोग खुद के साथ हम्म, के दोस्त लोग थे, उन लोगों को हम्म, एंगेज कर दिया था. तो इट हम्म. वाज आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली क्या फिगर होगा, बट मेजरली आई वुड से 25 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, 25-30 लाख अरे के बीच में 25 होगा. लाख, that's too much. वो लास्ट में भूपेंद्र, मैंने वो नहीं, वो फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक्चुअली जनवरी के बाद मुझे एक क्लाइंट मिला था, तो उसकी वजह से काफ़ी रेवेन्यू आ गया था, है ना. तो फिर भी बट फर्स्ट 12 शुरुआत months में में 25 लाख is too much. मैंने पता हाँ, that's हाँ, really good. my partner had not left the job by then, so he was helping me in stealth. In अप्रैल में we had to take a decision कि यार भाई जॉब छोड़ ले, कि प्रोजेक्ट्स हैं या तो हम कैसे करेंगे, how do we execute all this, right? Because he was like the main tech backbone for my whole organization. So तो I think वही, And your partner's name is Mohit, right? yes. हाँ. तो So अभी भी पार्टनर है, फिर उसने कब जॉब हाँ छोड़ी? हाँ, नहीं उसने अभी भी पार्टनर है. एंड उसने वही फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में उसने नेक्स्ट छोड़ दी थी जॉब अप्रैल से. हम्म, So this is 2015 April. He left the job, and then March तक he was supporting me in whatever part-time capacity or whatever. Part-time तो नहीं, वो मतलब he is like a night owl, so he gets, वो मतलब बीटेक से ही ऐसा है कि बैठा रहता है, काम करता रहता है, तो 3-4 बजे से पहले सोता नहीं है. I think he's still like that. So भूपेंद्र, वैसे लोग कहते हैं कि जैसे पहला बच्चा, पहला प्रोजेक्ट, हाँ पहली जॉब, right, पहली बीवी, right. नहीं आई टेक दैट बैक, नॉट पहली बीवी, मतलब ये ना हमेशा याद रहता है. पहली गर्लफ्रेंड, ठीक है ना, ये हमेशा जिंदगी भर याद रहती है. सो टेल अस अबाउट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये जो पहला क्लाइंट मिला, उसके लिए क्या किया व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ? Okay. So नहीं, तो जैसे मैं पहला सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट आई वुड से, मतलब मैंने बीटेक में ही कर लिया था. जब मैं अपने थर्ड ईयर के एंड में था एंड फाइनल ईयर की शुरुआत में था, राइट. एंड दैट टाइम देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स हु यूज्ड टू बेसिकली गेट फंड रेजिंग फॉर द टेक फेस्ट. तो ही यूज्ड टू टेल अस कि भाई ये एक मुझे लगता है कि तुम लोग के पास यहाँ पे प्रोजेक्ट है, तुम जाके मिल लो, इसके पास कुछ रिक्वायरमेंट है. तो ही यूज्ड टू वर्क ऑन, लाइक वी हैड अ रेव शेयर विद हिम, right? So he used to give us opportunities, and then we used to go. I used to go and collect. तो वो एक बुक सेलर था, कंसोर्टियम बुक्स का, they're still there. I think they used to supply books to our library, इलाहाबाद की, and they used to also supply to other universities, libraries, etc. So that was one project which we did, and that time we did like a full-fledged e-commerce for him, where he could take the orders, not get the money part only. सो बुक्स रजिस्टर करना, ISBN से आपका पूरा स्कैन करके उसके डेटाबेस से कनेक्ट करके जो भी है कार्ट वार्ट में ऐड करना, मतलब कि उसकी तो वही वाली बुक्स रहती थी ना जो एजुकेशनल यूज़ के लिए होती थी. तो फॉर्चुनेटली काफ़ी का ISBN मिल जाता था. फिर वो मतलब it was like a 1.5-2 months project for us at that point of time, and I think we did like a fairly good job because it's still up. And I still get those calls कि भाई मतलब at least until 2-3 years back I used to get calls कि Roman renew कर दो, server देख लो, and we are not on retainer or anything like that, right? But just because that like was like a अच्छा, one एक of बात our बताओ, first तो 25 लाख का तुमने रेवेन्यू कर लिया, बट हाउ मच वाज योर कॉम्पेंसेशन? माने रोटी दाल और रेंट का पैसा I would say सेविंग से दे रहे थे, पैसा towards दे the रहे थे?
मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मैं 50,000 40,000 के बीच में कुछ निकाल लेता था अपने लिए, जस्ट टू That's it. सर्वाइव, जस्ट टू Hmm. सर्वाइव आई वुड से, No, but this राइट। is great progress यार, because most startups में इतना नहीं हो पाता है मैंने। मतलब मैं तो सर्विसेज में हो जाता है, मुझे नहीं लगता कि सर्विसेज में नहीं होता है Hmm. ऐसा। आई डोंट नो अबाउट, सी प्रोडक्ट स्टार्टअप्स आर अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, राइट। सो हम मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमारा तो डे वन से ही पैसा बनना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में तो 3 महीने तक मेरे पास कोई था भी नहीं, राइट। सो उस समय तो मैं ही सेल्स हूँ, मैं ही रिक्वायरमेंट हूँ, मैं ही डेवलपर भी बन जाता था कभी कभार रात में, राइट। देर वर सम अकाउंट्स आई यूज टू हैंडल माई सेल्फ, लाइक देर वॉज नो डेवलपर, बिकॉज सब तक सम, और ना ही वो मतलब लेयरिंग भी नहीं थी ना कि प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो समझाएगा फिर उसके बाद वो डेवलपर कुछ करेगा। सो वो चीज़ मतलब व्हेन देयर इज एन एक्टिव लाइव थिंग विच इज़ गोइंग ऑन, तो उसमें मुश्किल हो जाता था, हमारे पास इतना कोई स्ट्रक्चर भी नहीं था, एंड द टिकट साइज वी यूज्ड टू गेट वाज पीनट्स, कि हम हायर कर लें कुछ, मतलब इतनी हायरिंग भी नहीं कर सकते थे हम, 25-30 हज़ार का मैक्सिमम एम्प्लॉय उस टाइम पे अफोर्ड कर सकते थे। तो आई रिमेंबर 2 लोग थे मेरे 25,000 के ऊपर उस टाइम पे तो वही था। And I think, Hmm. Bhupendra, you bring up a very big point. And I see a very big, because I see a lot of people who try to become entrepreneurs क्योंकि for various reasons, जिनके अंदर है ही नहीं कि मतलब जो भी क्या नहीं है, what is the entrepreneurial spirit, कोई कुछ स्पेशल नहीं है। The only thing special about an entrepreneur, in my opinion, and I've never been really an entrepreneur, I'm just an investor, is कि भैया अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आप उसको संभाल लोगे। राइट। ठीक है, राइट फ्रॉम बिजनेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, राइट टू कि उसका अकाउंट्स लेफ्ट राइट बैलेंस शीट करना है, कुछ करना है वो भी कर लूंगा मैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली अगर इसको एक्सट्रीम एंड पे ले जाओ कि यार अगर मैंने एक छोटा सा एक ऑफिस हायर किया और उसका फ्लश लीक कर रहा है तो वो भी मैं थोड़ा सा चेपी लगा के कर नहीं दूं। वो तो हमने बहुत साल तक किया है, मतलब आई यूज्ड टू हैव एन ऑफिस 3-4 साल तक, जो ऑफिस था उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, कोवर्किंग्स भी नहीं अवेलेबल थे उस टाइम पे आई थिंक, एंड देन मैनेज स्पेस में भी नहीं थे हम, एक प्रॉपर वो था, उसका एसी हर दिन खराब होता था सो वो तो अब वो बैठे हैं, मतलब आई थिंक 20-22 पीपल होंगे उस टाइम पे, एंड दे आर सिटिंग इन दैट स्पेस, दे आर फीलिंग हॉट, सो आई नो दैट दिस एसी इज नॉट वर्किंग, आई हैव टू कॉल समबडी, वो तो हम लोग करते हैं। Well, Bhupendra, see, you've been a serial entrepreneur. The reason I want to highlight this fact is बहुत लोग होते हैं वो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, वेरी सक्सेसफुल वेरी केपेबल पीपल, फिर उनको 5 साल बाद या 25 साल बाद लगता है कि यार मैं entrepreneur बन जाऊं, and some of them can do it, but only राइट। if they have the attitude कि यार अगर कुछ गड़बड़ होगी तो कर दूंगा। ये नहीं है कि मैं अपने 25 रिपोर्टीज को बोल दूंगा कि यार तुम ये कर लो तुम वो कर लो, या फिर मैं 4 ईमेल भेज दूंगा, और वो ईमेल भेज दूंगा या व्हाट्सएप मैसेज भेज दूंगा या टेलीग्राम भेज दूंगा कि कोई और कर लेगा। नहीं नो ऐसा वन तो एल्स इज गोइंग बहुत टू डू द मुश्किल है। जॉब, यू आर द ओनली वन। या सो मतलब आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल इन फॉर एनी एंटरप्रेन्योर, सबने किया है ये, ठीक है। आई मतलब मैंने एक इंटर्नशिप भी की थी जब मैं आई एम लखनऊ में था, देयर वाज अ आई एम अहमदाबाद गाय आई वाज वर्किंग विद, ही हैड लाइक अ 15-20 years of वर्क एक्सपीरियंस, ही केम फ्रॉम द इंडस्ट्री, दे आर डूइंग अ ग्रोसरी स्टार्टअप, राइट। तो ही ऑल्सो मतलब वी यूज्ड टू डू डिलीवरीज, मतलब मेरे को भी एक दिन भेज दिया सर ने कि बोला कि जाओ यार तुम भी चले जाओ इसके साथ, थोड़ा सा सामान ज़्यादा भारी है या वट एवर, एंड यू ऑल्सो सी दैट एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या होता है एक डिलीवरी का। आई मीन लाइक अब मेरा उस दिन मतलब मैं जाते जाते मतलब मेरे कपड़े भी कुछ कुछ वो बाइक में बैठने की वजह से फट गया, एंड दोज एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज देयर आई थिंक, बट आई हैव सीन हिम, जब ऑर्डर बड़ा हो जाता है उनके पास कोई पिकअप वैन नहीं है तो वो अपनी कार दे देते थे उस दिन कि भाई जाओ मेरी कार लेके चले जाओ। तो आई थिंक सबने ही किया होगा ये। मैं तो एक और एग्जांपल करता हूँ विदाउट नेमिंग समवन। इज अ गाय, मेरा एलबीएस का बैचमेट नहीं था, मेरे से थोड़ा सा कुछ साल सीनियर था, एंड दैट पर्सन हिज वाइफ एक्चुअली स्टार्टेड एक स्टार्टअप विद अ होम डिलीवरी फूड बिजनेस। ठीक है, बहुत लोग होते हैं, और लंदन में देयर इज अ बिग डिमांड। एक राइट। कुछ ऑथेंटिक मिल जाए यार, हम लोग मतलब एक्स्ट्रा पे कर देंगे कि वो गंदा सा। आई नो यू विक्स वाज टॉकिंग अबाउट कि बांग्लादेशी बड़ा अच्छा खाना था, सीरियसली यार 2 बार खाओगे पक जाओगे, वही वाला वही सेम चीज। मतलब एक Hmm. घर का इंडियन खाना कोई दे दे, उसका प्रीमियम ही अलग है। या सो उन्होंने शुरू किया होम मेड कुक फूड, बहुत लोग हैं, दे आर नॉट द ओनली वन। This guy is like a top ranking, that's why I'm not naming,
एग्जैक्टली। कॉर्पोरेट बैंकर, ठीक है, डील्स या। लीड करी हुई है $multi-billion की। हम्म। उससे कभी बात करो तो मंडे टू फ्राइडे या कभी कभी सैटरडे को सिर्फ डील्स में, क्योंकि बैंकर्स उनकी लाइफ क्या है। राइट। फिर उनको बोलो कि यार ये तो वर्क लाइफ बैलेंस है, यूके में है, यूके इज नॉट एज बैड इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एज से फॉर इंस्टेंस न्यूयॉर्क जैसे या। कहते हैं, या इंडियन स्टाइल भी नहीं है कि आपको कर देंगे, तो यार तू संडे को मिल ले। संडे को बेचारा डिलीवरी में लगे रहता है अपनी वाइफ के बिजनेस में, कि यार संडे को सारे डिलीवरी वाले लोग ना वो छुट्टी मारते हैं, तो मैं हूँ डिलीवरी वाला। वो अपने, यू वोंट बिलीव इट, 4 लीटर की 4000 सीसी की गाड़ी है, काफी प्रीमियम है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कार्स, उसमें वो 25-25 पाउंड की डिलीवरी कर रहा है। इमेजिन इमेजिन, बट ठीक है यार, मतलब बीवी का बिजनेस है तो उसको करने के लिए, आई नो, आई मीन दिस, the spirit of entrepreneurship is where I want to get at, both as a VC and every successful entrepreneur. And Bhupendra, that's what we या। want to project in our channel, कि बहुत सारे हमारे IIM के लोग हैं जो कॉर्पोरेट जॉब से entrepreneurship में जाते हैं, और बहुत सारे हैं जो सीधा IIM से entrepreneurship में जाते हैं, and they, you're one of the best role models for them, कि क्या लगता है entrepreneurship में, what is it. So can you tell your top 3-4 points कि ये लगा है, मैंने 10 साल में ये देखा है, सबसे बुरी हालत ये वाले 3 चीजें, इफ आई लुक बैक, ये 3। यार आई वुड से, मतलब मेरे को तो सबसे ज़्यादा जब अपना इंसिडेंट याद है कि जब मैंने टीम एक बना ली थी, एंड देन 1 साल हो गया था, मेरा पार्टनर भी मेरे साथ आ गया था, एंड देन कुछ लगभग हम लोग 15 पीपल हो गए थे उस टाइम पे, एंड देन देयर वाज वन क्लाइंट वाज लाइक द मेजर क्लाइंट ऑफ आवर्स, एंड लगभग 10 लोग उन्हीं के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। आई वाज लाइक अ गुड रिटेनर, एंड सडनली वन शॉट डे ही इज लाइक, dude, this is not working out. And right when the invoices are supposed to be cleared, then he acts out and says me ki, okay, this is something which is I don't think so anything is happening. I'm like, every day we do daily meetings, like we have, and we actually had a physical office inside the same customer's office also, right? उनका ground floor पे था, हमारा तीसरे the second floor पे था। तो and then one short day is like, okay, and we had some arrangement also of the deal as well कि यार हमको कुछ equity भी देंगे साथ में with whatever, right? And money part is also there, so कुछ ऐसा करके हम लोग साथ में product develop कर रहे थे, and मैंने सब अपने roles पे रख के उनको मतलब बिल कर रहा था जो भी है। so एंड सब कुछ चेंज हो गया, डील का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, उसमें कुछ भी क्लॉज लिख दिया, हमको पता भी नहीं है कि क्लॉज, मतलब अब तो पता है कि चलो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाता, साइन भी कर देता तो, राइट? तब नहीं पता था ना कि भाई आप कुछ भी साइन करा दो, हमको तो डर लग जाता था, हम पूछे भी किससे, पापा से बोले या किससे बात करें, whom do we reach out to, right? मतलब एट दैट टाइम आई डोंट थिंक सो देयर वाज लॉट ऑफ सपोर्ट, एंड लॉयर्स भी थोड़े अलग टाइप के मिलते हैं, मतलब वैसे वाले जिन लोगों को, आई थिंक कॉर्पोरेट को लॉयर्स थोड़े अलग ऑर्गेनाइजेशन ही होती हैं, वैसी नॉर्मल वकील अलग होते हैं, राइट? नॉर्मल वकील अलग होते हैं, राइट? तो सो अब उनने अटका दिया भैया, 4 तारीख हो गई थी, एंड वी यूज्ड टू पे सैलरीज बाय 6-7, और अचानक से ही हम वी आर लाइक कि अब सबको फायर करना पड़ेगा भाई, क्या करें, मैं, मेरे पास तो है ही नहीं ना पैसे मेरे पास है, बिकॉज आई हैड नो सेविंग प्रैक्टिकली, आई हैड जस्ट स्टार्टेड, एंड माय लाइक कलीग, मतलब जो पार्टनर है उसके पास थी, उसका पीएफ तोड़वाना पड़ता फिर, राइट? उनका भी 2 ही साल हुआ था नौकरी को, और 2.5 साल के अराउंड। तो फिर आई डिड, मतलब मैंने सबको, मतलब हैड टू लेट गो of people, that was like, and we just kept 3 people with us, were like the one of the most cheapest resources on these, out of this all 15 लोग थे, 12 लोग गए ऑलमोस्ट, 15 से 3 पे आ गए, राइट? एंड आई हैड टू लेट गो ऑफ देम, एंड देन सबको मैंने पीडीसी दिया, है ना, 15 दिन का सेवरेंस भी दिया, एंड फिर पोस्ट डेटेड चेक, तो पोस्ट डेटेड चेक दिया, मैंने कहा पैसे नहीं है भाई, but I will pay you in, like, give me 2 weeks, I will arrange the money, I'll pay you this month's salary plus this is another check, उसके बाद का एक और डेट का चेक है कि इसको बाद में कैश करना, this is your whatever services, whatever, हमारे पास तो जो पैसा था तो हमने 15 डेज के हिसाब से उनको दे दिया,
तो दे ऑल्सो गॉट पेस्ड एंड एवरीथिंग। आई सॉ कि मेरा एक, मैं उसमें एक पेन से लिखता था, ऊपर गया था तो टूटा हुआ था वो फाउंटेन पेन था, मतलब कुछ तो हुआ है। एंड 2 दिन जो थे मेरे उस दौरान, मतलब आई यूज्ड टू मीट दैट जेंटलमैन एज वेल, उनके सामने बैठना, आई यूज्ड टू गेट वेरी हाइपर, ऐसा कैसे कर सकते हो आप, वगैरह वगैरह, दोस काइंड ऑफ इमोशंस स्टार्ट। एंड देन मी एंड माय पार्टनर आर लाइक इन द हीटेड डेज ऑफ नोएडा, एंड हम बस, एक पार्क था वहाँ पे, उसके अराउंड बस चले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, किससे बात करें, दिन भर मतलब 2-2 3-3 घंटे हम चल रहे हैं, सेम चाय की टपरी पे ही आ रहे हैं, वापस घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर क्या कंक्लूजन लेके आए, मतलब यही कंक्लूजन लेके आए कि हम पीडीसी देंगे, फिर वो करेंगे। और फायर भी नहीं करने आती है ना, क्योंकि एक ऑफिस, एक ही कमरे का बड़ा टेबल था, है ना, एंड उसमें फायर करोगे कैसे, फिर एक एक करके सबको नीचे बुलाएं भाई। हमने सड़क पे खड़े होके बताया है लोगों को कि भाई वी हैव टू लेट गो, कि भाई एक एक करके बंदा स्टेप आउट होगा। तो आई थिंक those kind of times, when you see those times, and you're like, okay भाई। Why did this gentleman suddenly cancel the contract? सर वो उनका जो बैकग्राउंड था बिजनेस का, ही वाज लाइक, ही एक्चुअली वांटेड टू हैव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ही हैड दिस इन्फैचुएशन, he had money because he had some different kind of an industry of himself, and मतलब पढ़े लिखे थे, अच्छे खासे आईटी कानपुर के थे। तो एंड सडनली मतलब वही कि यार, जितना तेजी से मुझे ट्विटर बनाना है मान लो, तो वो बन नहीं रहा। Hmm. अब Hmm. वही 3-4 डेवलपर मिलके कुछ बना रहे हैं, वो चल रहा है, ऐप लॉगिन हो रहा है, धीरे धीरे करके फीचर्स बन रही है, Hmm. एवरीथिंग इज हैपनिंग डेली, हम डेली रिलीज कर रहे हैं भाई, सुबह बना रहे, शाम को दिखा रहे Hmm. हैं। बट Hmm. आई थिंक वही खेलना चाह रहे थे शुरुआत में, मुझे लगा ऐसा, अब मुझे लगता है कि खेलना Hmm. चाह रहे थे जस्ट टू सी कि ये बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, और एट द Hmm. सेम टाइम ही हैड, फिर उसके बाद तो मेरा बट ही मन। वापस वो कॉन्ट्रैक्ट मिला या वो सिर्फ खेल रहे थे? क्या नहीं नहीं, था? उसके बाद भी उनके साथ हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स भी किए। अच्छा, आज की ओके। डेट पे भी मुझे कॉल्स आते हैं कि प्लीज लेट्स आप लोगों ने उस जमाने में एक बनाया था, अभी तक रन कर रहा है, एंड सच एन, मतलब मेरे, मैं भी कभी खुद ही सरप्राइज होता है यार, कुछ मेंटेन नहीं किया, 10 साल से ज्यादा हो गया है, अभी तक रनिंग कैसे रखा। उनने 3-4 एजेंसी से काम करा लिया उस पे, है ना, और अभी भी रन कर रहा है। मैंने कहा वाह सही है यार, कुछ तो अच्छा करते थे हम लोग तब जमाने में। अब तो टेक्नोलॉजी ही बदल गई ना, कहाँ फ्रेमवर्क्स ही वो नहीं रहे। 10 साल में तो 3 बार टेक्नोलॉजी बदल गई है कम से कम। Hmm. एंड व्हेन आई से टेक्नोलॉजी, मतलब लैंग्वेजेस भी बदल गई होंगी, उसका इंफ्रा भी बदल गया होगा, Hmm. वर्जन्स तो कितने बदल गए होंगे, राइट। Hmm. तो तो समझ में yeah, नहीं आया. So he withdraws this project that you guys are doing, yeah, withdraws the funding. You have to fire 12 people from your team, but yeah. you still end up doing 2 more projects with him after that. 2-3 साल हम, फिर वहां से हमने ऑफिस एग्जिट कर लिया, वगैरह वगैरह, वी टुक Hmm. अनदर स्पेस, वी वेंट टू बैक टू आवर होम एक्चुअली, है Hmm. ना। हम जो जहाँ रहते थे अपार्टमेंट में, उसी के Hmm. लिविंग रूम को ऑफिस बना लिया, 3 लोग वहाँ आते थे। Hmm. फिर 3 महीने बाद हमने एक ऑफिस ले लिया था, Hmm. एंड देन 3-4 साल और हो गए, फिर उनका अचानक से फोन आया कि यार मेरे पास कुछ और काम है, करना चाहोगे, वगैरह वगैरह। तो टुक इट, Hmm. हम क्या, मतलब हमने एक बंदा लगा दिया, मैंने कर ले, बट Hmm. विद अ डिफरेंट माइंडसेट दिस टाइम। तो Hmm. वही, तो दैट वाज योर फर्स्ट लर्निंग, भूपेंद्र, कि दैट कैसे वाज लाइक अ मैं मेजर लर्निंग, आई थिंक वो मेजर, जोल्ट योर लर्निंग बिगेस्ट किया। नंबर वन लर्निंग? इसमें 2-3 लर्निंग है, इसमें पैसे रखो अपने पास, तो हाँ। इसमें कस्टमर एक मत रखो, राइट, बीट क्लियर इवन कॉन्ट्रैक्चुअली वेरी वेल। सो एक बात बताओ, सो आई एम गोइंग टू चैलेंज दैट। पैसे रखो अपने पास और कस्टमर एक मत रखो, ये सारे लोग आईआईएम से एमबीए करते हैं, इनको सब पता है। हाँ हाँ, तुम्हें भी पता पता है। था आईएम लखनऊ के हाँ, टाइम पे वो कि तो यार डाइवर्सिफिकेशन स्वॉट एंड भी कैश इज बनाते हैं, किंग, एंड ये ज्ञान तो करते हैं। सबको पता है। हाँ हाउ टू डू दैट? ऑब्वियसली अगर अगर सबके, इफ यू हैड हाँ द लग्जरी ऑफ चॉइस, कोई भी हाँ। नहीं ये करेगा। बट एज एन एंटरप्रेन्योर, हम्म, नॉट जस्ट एज एन आईएम का ग्रेजुएट जो स्ट्रेटजी पेल रहा है, हम्म। what is the biggest learning to a wannabe entrepreneur from IIM Lucknow or any IIM इस एग्जांपल से, कि क्या what you would have done? पैरानॉइड रहो, हाँ, Hmm. पैरानॉइड रहो, आई वुड से, थिंक वो एवरीथिंग कैन गो कौन रॉन्ग सी एनी। बुक थी? आई रिमेम्बर हमने आईएम में पढ़ी थी, रिमेन पैरानॉइड थी या ऐसा कुछ था। है विक कोई ना सब कोई तो गूगल होगी, सर्च कर रहा है। बट इट्स सिंपल है कि मतलब पैरानॉइड रहो, एंड थिंग्स कैन गो साउथ एनी डे।
कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हम मेरे साथ ये बहुत बार Yeah, हुआ है ना, I ऐसा think तो look, एक ही look, बार I've थोड़ा been an होता है। entrepreneur for a long time, Bhupendra. Stay paranoid. Like obviously, Andy Grove said this that only the paranoid survive. He was the Intel keeper. Yeah, Hmm. but I think there's something else about startups. I think also you have to be optimistic that it all usually Yeah, of works out. course. It all सो usually अपने works आप out. को मोटिवेटेड और ऑप्टिमिस्टिक तो रहना ही पड़ेगा, मतलब देयर इज Yeah. नोबडी टू मोटिवेट यू। ठीक है, दिस Yes. इज वन ऑफ माय लाइक माय को-फाउंडर इटसेल्फ सेज कि यार अपने को पार्टनर को कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। मतलब ठीक है वो पर्सनली कुछ कुछ हो जाता है, उसकी वजह से वो है कि ठीक है यू कैन बी देयर एज अ सेफ्टी नेट, बट कि ये चीज करनी है कि नहीं है, उसमें हर दिन एंथुजियास्टिकली काम करना है, वो कोई नहीं कर सकता आपके लिए, है ना। मतलब यू कांट कन्विंस एन एंटरप्रेन्योर कि यार जो तुम काम कर रहे हो वो सही है, इसको और अच्छे से करो, ये करो वो करो। वो थोड़ा बहुत अप्स डाउन्स होता है, बट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। मेरे मतलब यू क्रिएट टीम्स, you expect from people Yeah, and to then deliver, and I and think the other key thing learning is stay optimistic. The other thing is have good people around you. yeah, You have to have people who you like working with. If you don't have yeah, people who you like working with, it's not gonna work out. It's like never worked current out. मतलब So stay मतलब optimistic. Have हाँ, good people around you. People you like just being with. कि ठीक है यार इस दोस्त के संग मैंने दोस्त employee whatever. I'm just happy spending time with this person. यू देयर इज नो अदर वे आई थिंक। मतलब हम लोग एक तरह से छोटी फैमिली बन जाते हैं, एंड Yes. प्रोफेशनली जितना डेडिकेटेड टाइम देते हैं, आई डोंट थिंक सो कि पर्सनली अपने रिश्तेदारों अपने उनको भी दे पाते नहीं. हैं हम, है ना। हाँ हाँ. तो वो एक्चुअली में तो एक वी एंड अप बिकमिंग अ लाइक अ फैमिली ओनली, राइट। एंड यू हैव टू लाइक पीपल। इसमें तो ये भी नहीं है ना कि लाइक इन लाइक एटलीस्ट व्हेन यू आर स्मॉल, आई वुड से लेस देन 100 साइज, Hmm. राइट। तो इसमें तो आप कैसे कर सकते हो कुछ, मतलब आपको वो Hmm. बंदा अच्छा लगना ही चाहिए, उसके साथ काम करने को, उसको भी Yes. आपके साथ काम करने में अच्छा लगना ही चाहिए। यू इफ इवन इफ यू सी दैट स्लाइट मतलब हल्का फुल्का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज डिफरेंट, बट एज अ ह्यूमन बीइंग यू नीड टू लाइक दैट पर्सन, राइट। Exactly. एंड Exactly. देयर वैल्यूज हैव टू समहाउ अलाइन, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगा ही। एंड इट हैज हैपेंड मल्टीपल Exactly. टाइम्स। ये हाँ हाँ. होप वाला जो एक फैक्टर है, आई थिंक कि यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन टर्म्स ऑफ होपिंग गुड फ्रॉम पीपल ऑल्सो, बिकॉज आपके कई बार हम क्या करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ना, नई एंगेजमेंट्स में इतना पैरानॉइड हो जाता है कि नहीं करते। बहुत लोग मैंने देखा है Exactly. गलत Exactly. गलत So क्वेश्चन I पूछने लग think जाते हैं। paranoid and optimism. If given a choice, choose optimism. Don't choose paranoia राइट, because if राइट, you choose paranoia, you won't be able to do the startup. But the key thing is you have to work with people you enjoy working with. कि अगर राइट, success करें चाहे नहीं करें, the journey itself was fun. You should be able to say at the end of the day that the journey was fun. राइट। स्टार्टअप चली नहीं चली, पैसे कमाए नहीं कमाए, जॉब में ज़्यादा पैसे कमा लेते शायद, बट यार जर्नी यार तेरे संग काम करके अच्छा लगा, विथ योर एम्प्लॉयज, विथ योर कोलीग्स, विथ योर पार्टनर्स. राइट, That's my learning, being an entrepreneur for 25 years कि journey was fun. और अगर जर्नी में मजा नहीं आ रहा है, so end those नहीं होगा, relationships. They will never work out. राइट, They will never work out. If you're not enjoying the journey, end it. It will never work out and you will just end up cursing yourself. राइट, पैसे भी बना लोगे फिर भी कर्स करोगे. राइट। So, Bhupendra, how many startups have you done in 11 years? When I say startups, I'm not talking about company name changes and all that. You know what I mean. Yeah, I get that. So I this is my like SYMB technology has been like there for 11 years now, Okay. and that is primarily my bread and butter, and where we do technology B2B projects with enterprises and startups as well, right? And but I think what has happened with me, like over a period of time, I think had more than 6 partnerships across for different 6 to 7, I guess, for different product development, because we as a tech people always get approached कि हाँ भाई equity based development करोगे कि नहीं करोगे, types that kind of engagement. So that those engagements I've had multiple of time. Almost every time it has ended badly with me. So I've been very unsuccessful doing that successfully. And सो लेट्स से मेरे पहला जो स्टार्ट मैंने मेरे आई एम लखनऊ के ही बैचमेट्स थे, उनके साथ हमने स्टार्ट किया था, राइट। एंड दे वर लाइक कूल पीपल टू वर्क विद। थ्री ऑफ माई
IIM Lucknow batchmates. We wanted to do a K-12 के लिए assessment kind of a platform which would give them insights and also do some kind of a learning support for. This was just for 6 to class 12th के बच्चों के लिए. So and assessment के बाद obviously बताएंगे कि these are the areas which we this kid lacks, and these are some of the training courses they can do, or whatever we can do offline trainings as well and school level etc. So इसमें क्या था कि I had taken equity as like for tech development, and me and my partner both had that, and 3 of my other people like batchmates also had. We got selected in Delhi का कुछ startup का event कि यार दिल्ली के 20 स्टार्टअप्स में सेलेक्ट हुए, एंड देन वहाँ गए हम. वहाँ पे था कि 10 मेंटर से मिलना है आपको. सो टेक, प्रोडक्ट, यूआई, दीज आर लाइक बेसिक मेंटर्स. आए, बताया हाँ ठीक है प्रोडक्ट बनाया, अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, थोड़ा बहुत फीडबैक दिया वगैरह वगैरह. बट व्हेन इट केम टू सेल्स मार्केटिंग फोक्स, राइट, दे वर लाइक कि यार तुम क्या बेच रहे हो, कैसे बेचोगे, किसको बेचोगे, एंड दे काइंड ऑफ जैसा हमारा बेसिकली इंडक्शन ही हो गया एक तरह से IIM लखनऊ के जो टाइम पे हुआ था. तो एंड देन वी वर स्पीचलेस, राइट. मैं उस इवेंट में नहीं गया था, मेरा पार्टनर मोहित गया था, एंड 2 ऑफ माय अदर पार्टनर्स वेंट. So and the feedback they were giving, we maybe were not ready to take in that, right. तो उस समय क्या हुआ कि भाई everybody got pissed, and the person who was leading that also got pissed, and he was very furious at that point of time, right. And then we kind of just ended it. I mean, like in the sense कि lunch के बाद 5 और वेंटर से मिलना था, नहीं मिले और चले गए अपने अपने घर. So and then I got busy in my own services business, and we kind of did not talk for like 1 महीना. तो काफ़ी कोल्ड कम्युनिकेशन हो गया हमारे बीच में, कि दैट गाय ऑल्सो हैड लाइक क्योंकि बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक होता है जब मतलब ऐसा कुछ भी होता है. एवरीबडी पैशनेटली जॉब छोड़े हुए हैं, कोई यूआई से आया है तो कोई किसी और कंपनी से आया है, कोई सबने अपना अपना छोड़ के करा हुआ है. तो एंड ऐसे ही एक दिन मेट्रो में मिल गए हम लोग वापस, दिल्ली मेट्रो में. तो वी आर लाइक कि यार भाई क्या, क्यों, किस लिए, मतलब वी ऑल्सो थॉट अबाउट इट. बट बहुत सारे हमारे इश्यूज थे. मतलब वी डिडंट न्यू हाउ टू सेल, वी आर गोइंग ऑल अक्रॉस इंडिया टू सेल, वी हैड नो ज्योग्राफी ऑल्सो. वी एक्चुअली वर टेकिंग कस्टमर फीडबैक वेरी सीरियसली. उनको ये चाहिए, ये चिपका दो, हो जाएगा. तो अब प्रॉब्लम ये है कि उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट भी आती है ना, उतना तेज़ी से नहीं होता जितनी तेज़ी से आप आइडिएशन करते हो. तो हम प्रोडक्ट का ही डायरेक्शन बदलने लग जाते हैं. तो वो सब किया. तो मतलब हम अचानक से असेसमेंट और प्लस लर्निंग वाली कंपनी से एक ERP बनने लग गए, राइट. अब ये है ERP बनोगे तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, मतलब जो सालों से घुसे हुए हैं. तो अब उनका रेट्स भी अलग है, 25 रुपये 30 रुपये पे वो काम करते हैं पर स्टूडेंट पे, राइट. एंड वी वांटेड टू बी लाइक 100 रुपीज़ पर स्टूडेंट वाले प्लेयर्स. तो वो वैल्यू अलग हो गई, रेट अलग हो गई, कभी निकाल ही नहीं पाओगे आप. फिर वो मतलब बड़ा अच्छा ट्रैप है वो. और उस समय लगता है सब कुछ सही है, हाँ ये बोल रहा है एटलीस्ट ये इतनी बड़ी चेन आ जाएगी, देन वी विल पुश ऑन व्हाट वी वांट टू डू एक्चुअली डू. तो वो पहले डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, फिर वो कर लेंगे. बट आई थिंक बच्चे ही थे उस टाइम में, आई वुड से. तो Upendra, that reminds me, this is my observation, and I don't want to give too much ज्ञान on this क्योंकि मेरे को कुछ पता नहीं है. But मैं बहुत स्टार्टअप्स को देखता हूँ जो बेसिकली जो पिवट करते हैं. हाँ, Because if you can't pivot, तो फिर तो आप स्टार्टअप हो ही नहीं सकते हो, आप entrepreneur Yeah. भी नहीं हो सकते हो. कि राइट. and pivot for me is देखो मौका मारो चौका. It doesn't हाँ, mean कि यार मैं फ्रंट फुट खेल रहा था लेकिन शॉर्ट बॉल आ गई, मैंने बैक फुट पे स्क्वायर कट मार दिया. हाँ, Hmm. That is a pivot. राइट. But I see a lot of startups जो बेसिकली फिर उसके बाद ना हर अच्छा यार बैक फुट पे चौका लगा है, चल ठीक है हर बॉल अब बैक फुट पे ही खेलेंगे. और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब जा रहे हैं इलाहाबाद से देहरादून लेकिन पहुंच जाते हैं पटना. Hmm. एंड एज लॉन्ग एज वो पटना पहुंच गए वो तो ठीक है, लेकिन कई कई तो खो जाते हैं. एंड दैट इज द पॉइंट बेसिकली फ्रॉम व्हाट यू वर सेइंग. एज एन एंटरप्रेन्योर कितना पिवट करना चाहिए और कितना घूमना चाहिए और कितना नहीं घूमना चाहिए, व्हाट इज योर बिग एडवाइस टू फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स?
आई मीन जैसे आपने लेट्स से whatever target you have set, right, at least go ahead and I'm talking about not a 3 साल वाला टारगेट, I'm saying अगर आपने कुछ 2 महीने का एक सोचा है प्लान, तो उसको एग्जीक्यूट करो, लर्निंग्स पे फिर बात करो, फिर आपको चेंज करना है डायरेक्शनली तो कुछ मार्केट फीडबैक से फिर करके करो, बट एटलीस्ट वो कर दो, मतलब जो आप सोच रहे थे वो करो, तो मतलब मुझे लगता है कि एक रियल फीडबैक आएगा। आप कभी कभार, मैंने एक और स्टार्टअप किया था रिसेंटली, एक और मतलब so in this particular I did in prop tech, right, where I actually noticed कि यार हम लोगों का जो प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे जो लगता है फ्रैंकली वो ये है कि हम कभी मतलब मार्केट में उतार ही नहीं पाए प्रोडक्ट, हम डेवलपमेंट में ज़्यादा बिजी थे, एंड right, plus of course there is money also involved with every kind of a GTM which you want to do, right, तो वही उसमें हमने इतना आइडिया में ही पिवट कर दिया कि हम वी एंडेड अप क्रिएटिंग 6-7 स्टेक होल्डर्स के लिए एप्लीकेशन, राइट। अब वो वहाँ पे गलत हो गया, मतलब उसमें से अगर हम एक एप्लीकेशन को भी इतना पॉपुलर कर देते कि मतलब कुछ रियल इम्पैक्ट दिखने लग जाता, किसी की लाइफ तो ईजी होने लग जाती, तो आई थिंक वी वुड हैव डन अ मच बेटर जॉब, राइट। बट वही है कि हर फाउंडर अलग होता है, तो सबका बेचने का तरीका अलग है, सबका समझने का तरीका अलग, सबका एक्सपीरियंस भी एक अलग है जब वो आते हैं। तो आई थिंक मुझे, मैं भी हूँ अभी, तो मैं अभी जो प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो मैं भी अपने हिसाब से सोचता हूँ कि यार मेरा भी तो एक मतलब क्रेडिबिलिटी जाएगा ना इसके साथ। सो व्हाट, अभी कभी कभार हम लोग अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से उसको नहीं लॉन्च करते, तो बोलते हैं कि थोड़ा और इसको बेक कर लेते हैं एंड देन वी विल डू इट, तो वो आई थिंक It's a very fine balance between वो how much and how much not. And so, actually, I want to put this question. मैं बहुत महीनों से, बहुत सालों से पूछ रहा हूँ कि मैं विक से पूछूं, but he refuses to be a guest on our channel. okay, So I am going to now pose this question to him, Vix. As the Hmm. resident entrepreneur on this channel, what is Hmm. your view on how much to pivot? And when is too much So, pivoting okay. wrong? And when is it too less pivoting wrong? Hmm. Hmm. So, the couple of things I'll say. One is listen to the market, listen to what people are saying. What Bhupendra was describing was कि as technical founders, we keep developing the product in our own head and we never launch because that's the most scary thing कि अच्छा ये बटन यहाँ नहीं होगी, यहाँ होता और यहाँ क्लिक करूंगा तो ये चार चीजें एक संग हो जाएंगी, अरे वाह कितना अच्छा आइडिया है, चलो अब एक वीक इसी पे काम करते हैं। उसके माने that's the default that your mind will want to do, and you want to get away from, yeah, yeah, and solve problem in our own domain, and our domain is technology, writing code. But the harder thing is actually talking to the customer, asking him what he needs and solving his problem. So that's the thing. And then again, when you see some grass shoots, कि अगर तुम्हें कुछ ग्रास दिख रही है कि अच्छा क्लाइंट इज विलिंग टू पे मी फॉर दिस, देन डबल डाउन ऑन इट, कि जब when you're seeing grass shoots, double down on it. And नहीं, बट डबल डाउन का भी एक इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा कि मतलब हमारे पास इतना रनवे है उसकी वहां तक, उसकी वजह से चलाने के लिए, मतलब उसके लिए भी, हाँ, तो वो एक है इशू वहाँ पे भी कि हर चीज़ को फिर से, मतलब मज़ा आता है बहुत। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि ये ट्विक करने में इतना मज़ा आता है कि ऐसा लगता है कि हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब वो आप मतलब आपको खुद को बड़ा अच्छा लगता है कि आपने कुछ अच्छा किया, बट वो आप एक्चुअल में कर नहीं रहे होते कुछ, तो आई मीन एक और प्रॉब्लम है जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, दैट्स द पीपल hmm, प्रॉब्लम। एंड आई थिंक विक्स यू वर सेइंग ओनली वर्क विद पीपल कि जिनके साथ काम काम करके करने में मजा आता है। मजा आता है। It doesn't matter, but I would rather work with someone जिसके साथ काम करने में मजा आता है. He might be less qualified, he might, but that's the thing. If you want to optimize your long-term success, you have to work with people who you enjoy working with. I mean, I cannot stress it further. कि अगर एक है जो आईटी से कंप्यूटर साइंस का टॉपर है और एक दूसरा है कि जो अभी घर में कंप्यूटर उसने सीखना स्टार्ट किया है किताबों खोल के, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों में, बट यू एंजॉय वर्क द सेकंड पर्सन, चूज टू वर्क विद द सेकंड पर्सन, दैट्स हाउ स्ट्रांग दैट इनसाइट इज.
And Bhupendra, because are you on this everything extreme else. end or are you somewhere in the middle based No, on no, your I experience? I do agree. I don't work with anybody who know I don't like to work with. मतलब वो they तो will ठीक know. है, वो तो ठीक है, but वो IIT Because से everything versus else मतलब उस कि extreme pivot end पे करना हो. है. But हाँ, then ऑफ कोर्स कि अब नॉर्मल बीटेक ग्रेड से साथ काम करना आई वुड प्रेफर इफ अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा है बट आई एम नॉट एबल टू वर्क विद हिम, कुछ तो इशू है उनकी वजह से, तो आई डोंट थिंक सो आई कैन डू but दैट. if I ask you this, see, as a startup, बट वो कस्टमर के साथ फिर भी कर most सकते हो startups आप. don't have the choice. They don't have the luxury of choice. No, but that's the thing. You even stop doing things like pivoting or generating ideas. If you're not working with the team that you like working with, then you're not even thinking about the project. You're not pivoting. Like even the work itself becomes punishing. आप इंटरनली तो ऐसी टीम होनी ही चाहिए, मतलब ये तो इसका दिस इज नो ऑप्शन. मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम कस्टमर्स एंड, राइट, कि देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन फ्रॉम कस्टमर्स एंड हु इज मे बी स्लाइटली डिफिकल्ट और नॉट अलाइनिंग टू व्हाटएवर, बट दैट इज देयर राइट. वो तो ऐसे होंगे ही, थोड़े डिफिकल्ट तो होंगे ही ना. तो वो तो है, बट इंटरनली आई डोंट थिंक सो. नहीं तो फिर मतलब ये एंटरप्रेन्योरशिप ही क्यों कर रहे थे हम. I think that is the biggest learning from this episode. We've got a 25-year serial entrepreneur. We've got a 11 है 10 plus हाँ, 11 years मान serial लीजिए, entrepreneur. 11 हो And गया वैसे. one thing they both agree with in different geographies, in different sectors, is the number one thing that you have to work with people you like. You have to work with people. Well, like का मतलब ये नहीं है कि शादी कर लोगे कल, but like का मतलब ये है कि आपको काम करने में अच्छा लगता है, आपके ब्रेन सेल्स में मजा आता है, rather than you Yes. go home कि यार मतलब इससे बात कर ली, चल यार 2 पैक पीने पड़ेंगे. Yes. Yes. हाँ, वही वाइब आई वुड से Vibe. उसको Yeah, लोग vibe. बोलते हैं. Yeah. वाइब सही होनी चाहिए. यू Yes. कांट इवन That's लाइक इवन फॉर ऑफिस दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट. आप Yes. अपना रूम, अपना ऑफिस, अपना जो भी है, अगर उसमें वो वाइब नहीं आ रही है काम करने की तो आप नहीं कर पाओगे वहाँ पे काम. Yes. मतलब भूपेंद्र, हाउ इज योर ऑफिस सेटअप? मतलब क्या वाइब है? कुछ मतलब वो थोड़ा सा वो क्या वो वास्तुशास्त्र है या वो जापानीज वाला भी नहीं. कुछ एक वो है? So, nahin, so we are like a remote company at this point of time, right? We are opening up एक दो physical centers, but from a tech team perspective, it's pretty remote, and we are spread across, and each of us is working from their homes. So सबका अपना अपना desk है, अपना spot है काम करने का. I think that is the way of the future, because वो गए वो जमाने, and sooner or later everyone will come to that कि जहाँ पे काम करना है करो, as long as तुम ठीक से काम कर रहे हो. And there are professions in my view जो मतलब there are physical professions. मतलब आप दरबान वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता, राइट? रिसेप्शनिस्ट वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते. Right. But most of our professions, they can 90% of them can be work from home with a 10% component of ठीक है, client से अगर मिलना है ठीक है यार, मिल सकते हो. Yeah. That's good. हाँ. So, but what's your work from home? What's your work from your personal space? उसमें कौन सा वास्तु और कौन सा फेंग शुई है? ऐसा कुछ fancy नहीं है, well, I just need a big desk, that's all. That is your feng shui. That's to spread my things, because I like to spread things a lot and then work. Hmm. So I just need a big table around me and then just utilize every inch of it. That's all. And is that like a bowl ताकि रायता फैला सकते हो या कुछ और है? वो कंटिन्यूअस काम है, कभी रायता हो जाता है, फिर उसके बाद उसको डिक्लटर करो, फिर होता रहता है वो. I just need Perfect. एक Bhupendra, normal एक on board that भी रखता note, हूँ. thank you so much for being on our channel. I know it's been a longer episode, but thank you so much. It's late for you. Do you have any last words, either as an entrepreneur, as an IM alumnus, or generally for our viewers? I don't know. This like Vix mentioned, like be positive and optimistic. Even if you're like paranoid, just don't really let the optimism get affected with the paranoia which you have. Thank you. Hmm. Thank you, Bhupendra. Thank you so much. बी पॉजिटिव से मेरे को ना हमेशा नो एंट्री मूवी याद आती है, क्योंकि उसमें अनिल कपूर पूरे टाइम बी पॉजिटिव बोलते रहता है. फिर एंड में उससे पूछते हैं कि बी पॉजिटिव का मतलब क्या, वो बोलता है कि मेरा ब्लड ग्रुप है.
So sorry for the spoiler. अगर किसी ने वो मूवी नहीं देखी और देखना चाहता है after 15 years, but thank you, Bhupendra. Thanks for being on this channel. Okay, thank you. Thank you, Thanks, Bhupendra. thanks, Very good thanks, talking Vijay. to you. Thank you. Okay, Good talking to thank you. you. Same Bye. here.